Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday, I was explained the important question, that is SN1 and SN2 reactions in the organic chemistry. So before that, I was explained Sandmeyer and Gattermann reaction. These questions may come in the question number 18. 18 में ये क्वेश्चंस आ सकते, क्वेश्चन नंबर 18 में ये इंपॉर्टेंट है। 18 क्वेश्चन में ज़्यादा यही पूछ रहा है, एसएक्यूज पढ़ा रहा था मैं, साथ में भी एसएक्यूज भी लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में राइट अबाउट दी SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन, ये क्वेश्चन हो सकता। और नेक्स्ट वन राइट अबाउट दी सैंडमेयर गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। और नहीं तो फिर एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड कंपेयर विद दैट ऑफ द अल्कोहल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करो बोलता है। सो ये और एक क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट एसएक्यूज है। ये 18 क्वेश्चन में इसी में से ज्यादा आते, या नहीं तो फिर कौन से भी नेम रिएक्शंस मिला के पूछता है, नेम रिएक्शंस, HVZ रिएक्शन या नहीं तो कार्बालामाइन रिएक्शन, वो VSAQ में ज्यादा आते हैं। ये नेम रिएक्शंस यहाँ पे आने के चांसेस कम है, अगर आए तो नेम रिएक्शंस, ये सैंडमेयर गैटरमैन ये रिएक्शन से पूछ रहा है। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिविजन चल रहा हमारा। तो लास्ट क्लास में SN1 SN2 और सैंडमेयर गैटरमैन रिएक्शन समझाए थे। I was explained these two answers in last class, SN1 and SN2 reactions. So Sandmeyer and Gattermann reaction. Once again I am repeating this, SN1 SN2 Sandmeyer Gattermann बोल लेते हुए कंप्लीट कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद और थोड़े VSAQs जो है वो कंप्लीट करता हूँ। We'll see one by one. Repeating this beta, SN1 reaction. What is the SN1 reaction? SN1 nucleophilic substitution reaction, unimolecular nucleophilic substitution reaction. Which type of the alkyl halide undergoes this reaction? Okay, yesterday I told you, I was explained this. Tertiary alkyl halides undergoes this type of the reaction, okay, in which rate of the reaction is depends upon the concentration of alkyl halides only. In the rate determining step, only one molecule alkyl halide is participated. Therefore, it is called as unimolecular substitution reaction. In these two steps are present. First step is formation of carbocation takes place. Okay, this is the first step I am writing. This is the formation of carbocation, and the second step is on this carbocation, this is the first step and this is the second one. On this carbocation, this is OH minus, nucleophile is attaches on this carbocation. As a result, our product, that is what is formed, and here alcohol is formed. Okay, so in this type of the reaction, racemization takes place, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन थोड़े ऐसे फॉर्म होते हैं और थोड़े OH ग्रुप्स पीछे से भी अटैच हो सकते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन या रेसिमाइजेशन होता है। सो उसके बाद में व्हाट इज द रेसिमिक मिक्सचर, ये भी थोड़ा मालूम कर लेना है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द D and L compounds is called as the racemic mixture. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L, D बोले तो डेक्स्ट्रो, प्लेन पोलराइज लाइट को लाइट राइट साइड में रोटेट करने वालों को डेक्स्ट्रो कंपाउंड्स बोल के बुलाते हैं, डेक्स्ट्रो। और PPL को D कंपाउंड्स बोल के बुलाता है, D कंपाउंड्स। प्लेन पोलराइज लाइट को सैंपल ट्यूब में लेके पोलरिमीटर में प्लेन सैंपल ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लेके PPL को पास कर लिए, तो रिजल्टिंग जो लाइट आ रही वो लेफ्ट साइड रोटेट हो रही, तो वैसे कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है जो लेफ्ट साइड रोटेट करने वाला कंपाउंड है, उसको क्या बोल के बुलाते हैं, लिवो कंपाउंड बोल के बुलाते हैं।
Once again, I'm repeating. When PPL is passed through the compound, organic compound, if this compound rotates the PPL towards right side, that is said to be dextro compound. If we are passing the PPL through this organic compound, if it rotates the PPL towards the left side, that is called as the LIGO compound. Equimolar mixture of the D and L, 50% D है और 50% L है. 50% D और 50% L कंपाउंड के मिक्सचर को क्या बोल के बुलाते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बोल के बुलाते हैं. यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होने वाला है. This is about the SN1 reaction. Now next about the what is SN2 type of the reaction. Primary alkyl halide undergoes this type of the reaction. Primary alkyl halide. Primary alkyl halide. This is the alkyl halide. Haloattached carbon contains one alkyl group, therefore it is called as the primary alkyl halide. Primary alkyl halide upon hydrolysis with the aqueous KOH that gives the alcohol. This is the product form CH3, CH3, CH3. Alcohol जो form हो रहा ना ये है alcohol form हो रहा. This reaction undergoes this type of the mechanism. That in that mechanism only single step is present. Single step वाला mechanism proceed होता. तो reaction में क्या हो रहा देखिए, CH3 यहाँ लिख लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ लिख लिया और ये हेलोजन को यहाँ पे लिख लिया. In this SN2 reaction, see here, in the first step only, nucleophile OH minus is attaches on the back side of this carbon, exactly opposite to the chlorine atom. यहाँ जो chlorine है, इसके exactly opposite side से आप OH minus attach होता, जिसकी वजह से एक transition state form हो जाता. Okay, this is the state called as the transition state. ये chloride ion का bond है, it is called as the transition state. ओके फिर उसके बाद थोड़ी देर में ये डिकम्पोज हो जाके क्या होता भाई, ये डिकम्पोज यानी कि यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होता है. यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होके Cl बॉन्ड क्लीवेज होता हाइड्रोजन से HCl. ओके Cl माइनस को हटा के लिखो. सो इन दिस केस when primary alkyl halides are subjected to hydrolysis with the aqueous KOH, alcohols are formed, but we are seeing the mechanism. In this mechanism, rate of the reaction or in the rate determining step, two molecules are participated. First one is the Rx and second one is the OH minus. Therefore, this is called as the SN2 reaction, bimolecular substitution reaction. इसको bimolecular substitution reaction बोलते हैं. In this reaction, first transition state is formed, now then that is converted to the alcohol. ये bond cleavage हो रहा भाई है और OH bond strong हो जा रहा है, bond form हो गया, alcohol आया और configuration exactly Cl के opposite side में OH आ रहा. तो इसको बोलते हैं inversion of the configuration takes place. Inversion. This is about the stereochemical result of the SN2 reaction. In the SN2 reaction, inversion of the configuration takes place. VSAQ में बोलता आपको write the stereochemical result of the SN1 and SN2 reaction. SN1 reaction में क्या हो रहा, racemic mixture form हो रहा, racemization हो रहा. और SN2 reaction में क्या हो रहा भाई, inversion of configuration takes place. ओके डी कंपाउंड रहा तो फिर उसके बाद में प्रोडक्ट में जो है वो एल कंपाउंड आता है, इसको बोलते हैं उल्टा हो गया ऐसा, inversion of the configuration takes place. In the SN2 reaction, the stereochemical result is inversion of the configuration. In the SN1 reaction, racemization of racemic mixture is formed. This is about the stereochemical result of SN1 and SN2 reaction. This is the important VSAQ. VSAQ में है भाई ये. Now next और एक VSAQ है भाई ये, यहाँ से और एक VSAQ है. What are ambident nucleophiles? Ambident nucleophiles. Ambident nucleophiles किसको बोलते हैं? For example, CN है. This is the ambident nucleophile. ये अल्काइल ग्रुप है भाई, ये C से भी बाइंड हो सकता. ये अल्काइल ग्रुप है ना, ये देखिए CN ग्रुप NC से भी बाइंड हो सकता. ओके दो डोनेटिंग साइट्स है मगर एट ए टाइम एक ही डोनेटिंग साइट से ये लगा हुआ है. सो न्यूक्लियोफाइल विच हैज टू डोनेटिंग साइट इज जनरली कंसिडर्ड एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बट एट ए टाइम इट इज जॉइंस विद द ओनली वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से जॉइन होके रहता.
Okay, this is about the ambident nucleophile example. At here RCN है, RNC है, ऐसा तो और एक RNO2 है भाई, RNO2. Okay, so this is also NO2 group is the ambident nucleophile. कैसा भाई दो किस्म के linkages form कर सकता. ये देखिए, this is the first type of the linkage and the second type of the linkage oxygen से band हो सकता, ONO. Like this, O double bond O, like this. See, NO. दो किस्म के डोनेटिंग सेंटर्स है. The nucleophile which has two donating sites, that is called as ambident nucleophile. This is another VSAQ in this. तो ये अल्काइल हालाइड्स में से SN1 SN2 रिएक्शन आ गया. फिर उसके बाद मैं ये VSAQ समझा रहा हूँ. VSAQ में स्टीरियोकेमिकल रिजल्ट ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन क्या है पूछा तो ये लिखना. एंड VSAQ में और एक व्हाट इज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोले तो ये लिखना. और एक इससे पहले बोला व्हाट इज द रेसिमाइजेशन. रेसिमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द D and L कंपाउंड, 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लिवो कंपाउंड के मिक्सचर को exactly half of mixture of the D and L is called as the racemic mixture. So this is about the racemic mixture and VSAQs बेटा. और एक छोटा definition है. What are enantiomers बोल के पूछता. Enantiomers which are not super impossible mirror images. देखिए बेटा, मैं कौन सा भी एक कंपाउंड लिख ले रहा हूँ भाई. यहाँ पे देखिए आप, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो यहाँ CH2OH डाल लिया और यहाँ पे CHO डाल लिया, यहाँ OH डाल लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन डाला. इसको मिरर प्लेन के सामने या मिरर के सामने रख रहा हूँ मैं. तो इसका मिरर इमेज क्या हो गया भाई? इधर देखिए, OH ग्रुप इधर आ जाता, CH2OH इधर आ जाता, CHO इधर आ जाता, हाइड्रोजन इधर आ जाता. तो इसका मिरर इमेज इन है, इसका मिरर इमेज उन है. ओके, तो इसको लेके आके एग्जैक्टली इसको लेके आके इसके ऊपर रख दिया तो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता, यानी कि ये दो मैच नहीं होते. तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एनंशियोमर्स बोलते हैं. देखिए आप, OH ग्रुप इधर राइट साइड में है, इसको ऐसा लेके आके इसके ऊपर रख दिया तो दोनों मैच हो रहे हैं क्या? नहीं. OH ग्रुप इसके राइट साइड में है, यहाँ पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है. मिरर इमेज रिलेशनशिप है बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है. इसका इमेज उन बनता, उसका इमेज इन बनता, मगर लेके आके उसके ऊपर रख दिए तो सुपर इम्पॉसिबल नहीं रहता, एक से एक मैच नहीं होता. तो इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के एनंशियोमर्स बोल के बुलाते हैं. दिस इज अबाउट द एनंशियोमर्स. एनंशियोमर्स आर नथिंग बट द stereoisomers which are non-superimposable mirror image relationship, which are having non-superimposable mirror image relationship are called as enantiomers. These are the some important VSAQs in the alkyl halides. Now next, फिर इसके बाद में अल्कोहल्स एंड फिनॉल से थोड़े VSAQs है और SAQs है, थोड़े इसके बारे में समझा रहा हूँ मैं. अल्कोहल एंड फिनॉल में हाउ फिनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्यूमीन. क्यूमीन से कैसा फिनॉल को प्रिपेयर कर रहे हैं? हाउ फिनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्यूमीन. क्यूमीन इज नथिंग बट द आइसोप्रोपाइल बेंजीन. Isopropyl benzene is called as cumene. Okay, how you have to write that isopropyl benzene? यहाँ CH लिख लो भाई, यहाँ पे CH3 लिखो, यहाँ पे CH3 लिखो, ये हो गया isopropyl benzene. आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल प्रिपेयर करना है. तो कैसा प्रिपेयर करना है? इधर देखिए, व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द एयर, ये क्यूमीन जो है क्यूमीन पेरोक्साइड बनता. क्यूमीन पेरोक्साइड, यहाँ C है ना, ये O2 दोनों के बीच में डाल लो, ये हो गया. बाकी क्या एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, CH3CH3. ओके, इट इज कॉल्ड एज द क्यूमीन पेरोक्साइड. क्यूमीन पेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड बोल के भी बुला सकते हैं इसको. So this is the cumin peroxide. Now then इसको थोड़ा गर्म कर दिया एसिडिक मीडिया में तो ये प्रोडक्ट आ जाता. व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? ये OH है ना, इधर सब्स्टिट्यूट हो गया भाई, OH आ गया, खत्म, फिनॉल फॉर्म हुआ. So when cumin is oxidized in air, that gives the cumin peroxide. When it is treated with the acids, okay, and slight heating of this compound, इसको जो है थोड़ा गर्म भी कर लिए, एसिड से मिला दिए. As a result of that, you will get the phenol. Phenol के साथ में क्या फॉर्म हुआ? CH3C
डबल बॉन्ड OCH3, ये पार्ट इसको बोलते एसीटोन, एसीटोन एंड फिनॉल आता। दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल फ्रॉम द आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड था बेटा, वो एसएक्यू में भी पूछ सकता है या तो वीएसएक्यू में पूछ सकता, हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड। सो बेंजीन के ऊपर CH लिख के 2 CH3 लिख लेना, इट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। Isopropyl benzene when oxidized in air gives the cumin peroxide, okay, that is dissociated in presence of the acid and gives that compound phenol and acetone. So this is the preparation of the phenol from the isopropyl benzene. It is a VSAQ, नहीं तो कभी तो भी ESAQ में भी पूछ सकता। So now then what is the product form upon the reduction and oxidation of this बोल के पूछता बेटा। तो फिनॉल को ऑक्सीडाइज करे या रिड्यूस करे तो कौन से प्रोडक्ट्स आते, थोड़ा ये देख लीजिए। अब फिनॉल है, मैं इसको क्या करा, जिंक से मिला दिया, ओके, व्हेन इट इज रिड्यूस्ड विद द जिंक, जिंक से मिला दिया तो जिंक क्या होता मालूम है, जिंक डस्ट, जिंक अब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन, ये इसका ऑक्सीजन को ले लेता, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फिनॉल से ऑक्सीजन चले गया तो बेंजीन आता प्लस ZNO। दिस इज द रिडक्शन ऑफ द फिनॉल। When phenol is reduced, why it is reduction means it loses the oxygen atom, no, that's why it is called as the reduction. Zinc takes the oxygen atom. When phenol is reduced with the zinc dust or heated with the zinc dust, as a result of that benzene is formed. This is the reduction product. When phenol is reduced, you will get this benzene. Now then, what is the oxidation product? When it is oxidized, okay, phenol hai. When it is oxidized with the K2Cr2O7, KMnO4 ले लिए, इसको ऑक्सीडाइज करे तो क्या फॉर्म होने वाला है भाई, ये फॉर्म होता है या नहीं है ये। सो यू विल गेट दिस वन, बेंजोक्विनोन बोल के बुलाते हैं इसको, ओके। सो दिस इज द प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एंड इट इज द रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फिनॉल। So in this phenol already you learned that LAQs, which are those LAQs? This one, what is this reaction? Kolb's reaction है। फिर एक बार रिवीजन हो जाता, देखिए Kolb's reaction. What is the Kolb's reaction? बोलिए what is the Kolb's reaction? When phenol is treated with the or heated with the sodium hydroxide and followed by the reaction with the acid, reaction with CO2 in acidic media। पहले यहाँ ONA आ रहा, फिर उसके बाद में यहाँ CO2 है ना भाई, एसिडिक मीडिया में रिएक्ट हुआ तो सिंपल रिएक्शन में लिख ले रहा हूँ, फिर यहाँ OH डाल लो, यहाँ पे COOH आता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, इसको सैलिसिलिक एसिड बोल के भी बुलाते। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द कोल्ब्स रिएक्शन बोल के बुलाते, कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन। नेक्स्ट वन, what is the acetylation of the phenol? Acetylation of phenol बोले तो phenol है भाई, इसको मैं acetyl chloride से मिलाया CH3COCl, as a result of that देखिए यहाँ पे O, ये COCH3 आता, acetophenone फॉर्म होता। This is the acetylation process. Now then फिर इसके बाद में what is the Raymer-Tiemann reaction? Raymer-Tiemann reaction में क्या हो रहा, तो Raymer-Tiemann reaction में we are taking this one phenol, now then it is treated with the chloroform CHCl3 and 3KOH. As a result of this what you will get, mechanism है, ठीक है, पहले ONA आता, यहाँ पे CHCl2 आता, फिर इसके हाइड्रोलिसिस की वजह से आपको ये प्रोडक्ट आता, OH आता, यहाँ CH वो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड फॉर्म होता, इसको सैलिसिल्डिहाइड बोल के बुलाते। This reaction is called as the Raymer-Tiemann reaction. So this is about the phenol बेटा। अल्कोहल्स में एक क्वेश्चन है, ग्रिगनॉड रिएजेंट्स को कैसा प्रिपेयर करते हैं, हाउ ग्रिगनॉड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो ग्रिगनॉड रिएजेंट को कैसा प्रिपेयर करें, आई एम टेकिंग द अल्काइल हैलाइड। व्हाट इज द अल्काइल हैलाइड? C2H5Cl, C2H5Cl, it is the alkyl halide when it is treated with the magnesium metal, मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करना है, ओके। व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद द मैग्नीशियम मेटल, जस्ट दिस मैग्नीशियम इज इंसर्टेड बिटवीन C2H5Cl, C2H5Cl दोनों के बीच में मैग्नीशियम आ गया,
तो क्या फॉर्म होता भाई, C2H5MgCl फॉर्म होता, RMgX बोल के बुलाते, इट इज नोन एज द Grignard reagent. Okay, it is the preparation of the Grignard reagent. How Grignard reagent is prepared? When alkyl halides are treated with the magnesium metal in the presence of the ether solvent, as a result of that you will get the alkyl magnesium halides. This is the reagent is used in organic chemistry for the alkylation purpose. In the preparation of alcohols we use करते, in the preparation of the carboxylic acids Grignard reagent को यूज करते, इन द प्रिपरेशन ऑफ alkanes also Grignard reagent को यूज करते. ओके, सो विल सी वन बाय वन. फर्स्ट ये Grignard reagent का प्रिपरेशन है, इसके एप्लीकेशंस और यूजेस के बारे में समझा रहा हूं मैं. Grignard reagent को कहाँ इस्तेमाल करते, ओके, हाउ दिस Grignard reagents आर यूज्ड. तो देखिए बेटा लिख रहा हूं मैं, C2H5OH अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद द Grignard reagent. चल क्या है Grignard reagent, RMgX है, ये Grignard reagent है. तो RMgX से ट्रीट कर लिए तो ये R का जो है ना एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है अल्कोहल का एक हाइड्रोजन R से मिल जाता. फॉर एग्जांपल देखिए C2H5OH है, आई एम राइटिंग दिस CH3MgCl, ये Grignard reagent से मिला दिया अल्कोहल को. तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 से मिल जाता. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट CH3 जाके CH4 विल बन जाता. ओके, अल्केन फॉर्म हो रहा. तो रिमेनिंग क्या बच गया भाई, ये देखिए C2H5O ऐसा डाल लीजिए, Mg ऐसा डाल दे के Cl को बाहर डाल दिए, एक एडेक्ट फॉर्म हो जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम द Grignard reagent. और Grignard reagent से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी प्रिपेयर करते हैं. कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, when Grignard reagent is treated with the carbon dioxide. Okay, what is the Grignard reagent, CH3MgCl. देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हुआ. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, MgCl को क्या करना, ऑक्सीजन को दे देना और फिर CH3 अल्काइल ग्रुप को इधर ऐड कर लेना. तब देखिए CH3 यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, OMgCl ले लिया, यहाँ पे CH3 वैसे लिखना है, यहाँ डबल बॉन्ड O ले लिया है. नेक्स्ट अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस, इसको हाइड्रोलिसिस करो भाई, हाइड्रोलिसिस करो तो क्या फॉर्म होता है, ये हाइड्रोजन इससे मिल जाता और OH जो है इधर आ जाता. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड वैसी है, यहाँ OH आ गया, फिर यहाँ बाजू MgOHCl, इसको हटा दो अब. दिस इज द कंपाउंड CH3COOH is the carboxylic acids. Carboxylic acids are prepared by using the Grignard reagent. Not only that, alcohols are also prepared. एक दो applications याद रख लो. तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ाया मैं आपको, what is the Grignard reagent? RMgX is called as the Grignard reagent. It is prepared by the reaction of the alkyl halides with the magnesium. When alkyl halides are treated with the magnesium metal in the presence of the ether solvent, we will get the reagent that is the Grignard reagent. RMgX से लिखते हैं इसको. Grignard reagent के applications में it is used for the preparation of alkanes and it is used for the preparation of the carboxylic acids, and Grignard reagent also used for the preparation of the alcohols. So these are the applications of the Grignard reagent. Now you see another question, alkyl halide से ये question है, that is CH3Cl है भाई, ये alkyl halide है. When alkyl halide is treated with the KCN से ट्रीट करे तो क्या होता, what is the product form? सिंपल भाई, ये KCl को निकाल दो, Cn को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट CH3 क्या आने वाला है, Cn आता और स्मॉल क्वांटिटी में CH3NCB आता. By means of the alkyl halide, when alkyl halides are treated with the KCN or AgCN, you will get the mixture of the CH3Cn and CH3NC. When the what happened when alkyl halides are treated with KCN? Okay, KCN से react करे तो क्या होता बोल के क्वेश्चन पूछा तो we will get the cyanides and isocyanides. So cyanides and isocyanates के preparation में रहता है. तो when alkyl halides are treated with the KCN, mixture of this CH3Cn मेजर क्वांटिटी में ये आता, थोड़े क्वांटिटी में आता, 70% ये है तो 30% ये है. तो KCN यूज करे तो you will get the mixture of the cyanide and isocyanide.
So this is about the alkyl halide के reaction KCN से. Now then when alkyl halides are heated with the sodium metal, alkyl halide C2H5Cl, when alkyl halides are heated with sodium metal in the presence of the ether solvent, what is the product form? I am taking the 2 moles of the alkyl halides when it is heated with the sodium metal, NaCl चले गया. देखिए लोअर आल्केन से हायर आल्केन C2H5 जो मिल गए तो C4H10 फॉर्म हो जाता प्लस 2 NaCl फॉर्म होता. दिस इज द रिएक्शन इज कॉल्ड एज हीटिंग ऑफ द अल्काइल हाइड्राइड विद द सोडियम मेटल इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन बोल के बुलाते. इट इज अनदर नेम रिएक्शन कॉल्ड एज द वुड्स रिएक्शन. देन आफ्टर दिस व्हाट इज द वुड्स फिटिंग रिएक्शन. फिटिंग रिएक्शन क्या होता? एक अल्काइल हाइड्राइड ले लिया मैं C2H5Cl, फिर 2Na एग्जैक्टली सेम वैसे ही लिखा, मगर और एक क्या ले लिया भाई मैं एराइल हाइड्राइड ले लिया. एराइल मतलब बेंजीन के ऊपर Cl है, एरोमेटिक हाइड्राइड को ले लिया. when one molecule of alkyl halide and another molecule of aryl halide is heated with the sodium metal, so this is the reaction takes place and NaCl चल गया तो बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता, अल्काइल बेंजीन फॉर्म होता एंड इट इज द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द वुड्स फिटिंग रिएक्शन. वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोल के बुलाते हैं इसको. वुड्स फिटिंग रिएक्शन नहीं है. खाली फिटिंग रिएक्शन बोले तो 2 एराइल हाइड्राइड्स को लेना, वुड्स रिएक्शन बोले तो 2 अल्काइल हाइड्राइड्स को लेना. वुड्स फिटिंग रिएक्शन अगर पूछे तो एक अल्काइल हाइड्राइड और एक एराइल हाइड्राइड लेना है आपको. सो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन. ठीक है, तो अल्कोहल्स तक आ गए अपन. अल्कोहल एंड फिनॉल, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट था अल्कोहल एंड फिनॉल में समझा दिया. देन फिर उसके बाद में एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल के बारे में. तो ये फिनॉल को एसिडिक नेचर क्यों रहती है? ब्लू लिटमस को रेड कलर में तब्दील करता. सो इट इज द जो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज करा तो वो क्या हो सकता भाई? वो एसिड होता. वो फिनॉल इज एसिडिक बिकॉज इट कन्वर्ट्स द ब्लू लिटमस टू रेड. नाउ देन व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद दी, देखिए सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करे तो इसका साल्ट फॉर्म हो रहा. तो एसिड रहने की वजह से बेसिस से रिएक्ट करे तो क्या फॉर्म होता भाई? इसका साल्ट सोडियम फिनॉक्साइड आता. साल्ट इज फॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट इज हैविंग एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर में रहने से ये ब्लू लिटमस को रेड के ऐसा कन्वर्ट कर दिया और फिनॉल को बेसिस से मिला दिए तो साल्ट फॉर्म हो गए. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट इज हैविंग एसिडिक नेचर. नाउ देन हाउ इट बिहेव्स एज एसिड. क्यों एसिड कैसा बिहेव करता हूँ? तर देखिए यहाँ पे मैं OH ले लिया भाई, इसके ऊपर 2 लोन पेड्स है तो ये विड्रॉइंग ग्रुप कैसा काम करता है? यहाँ पे जो कार्बन है ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेड्स है ना इजीली से बेंजीन रिंग के अंदर चले आते, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाता. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फिनॉक्साइड फॉर्म हो जाता. क्या फॉर्म होता भाई? फिनॉक्साइड, ये फॉर्म हो जाता. सो ये जो है ना ये डबल बॉन्ड्स है, इसके लोन पेड सीधा ट्रांसफर होते हैं, ऐसा रोजनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट होता और फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज हो जाता. बिकॉज ड्यू टू द stability of phenoxide ion it easily releases H+ ions. H+ ion को रिलीज कर रहा है उसीलिए it is acidic in nature. This is about the acidic nature of the phenol. देखिए बेंजीन रिंग पे विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आते, फिनॉक्साइड आयन आता. सो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आने के बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जा रहा हो. ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दिस इज द stable one. Phenoxide ion is stable than the phenol. So यहाँ पे it easily loses H+ ions and H+ ion को रिलीज करने वाला कौन है बोले तो वो एसिड है. This is the acid one, acidic substance है. So by this way we can explain the acidic nature of this phenol. These are the some important questions in the organic chemistry. with organic chemistry में जो maximum important questions है वो मैं आपको पढ़ा दिया. तो अभी organic chemistry में alcohols and phenols से complete कर लिए अपन. फिर उसके बाद carboxylic acids में एक reaction important है. Just I was explained you preparation of the carboxylic acid from the what? ये देखिए carboxylic acid को Grignard reagent से prepare करें अपन.
Carbon dioxide when treated with the Grignard reagent, that is CH3MgCl, इससे रिएक्ट करे तो क्या होने वाला है, इधर देखिए, ये CH3 आके इधर ऐड हो गया, MgCl इधर ऐड हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, OMgCl, C डबल बॉन्ड वो वैसी है CH3, अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस विल गेट दिस वन HOH, हाइड्रोलिसिस करे OH इधर आ गया और OH इधर जोड़ देना और हाइड्रोजन इधर ऐड करना, CH3C, यहाँ पे OH है, C डबल बॉन्ड वो, this is the product CH3COOH. This is the preparation of the carboxylic acid from the Grignard reagent. कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक रिएक्शन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ में उसके सीयर HVZ रिएक्शन बोल के, इससे पहले मैं समझा हेल-वॉलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट BSAQ है इसमें से। हेल-वॉलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन इज नथिंग बट दी this one CH3COOH, carboxylic acid when treated with the chlorine Cl2 in the presence of what, red phosphorus, reaction takes place, पहले एक क्लोरीन इधर लगा देना, दो हाइड्रोजन साथ में COOH, okay, halogenation of the carboxylic acid, okay, that is the acetic acid, that gives what, first one chloro एसिटिक एसिड आता, फिर उसके बाद डाइक्लोरो एसिटिक एसिड आता, फिर उसके बाद में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड फॉर्म होता, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ClClCl COOH. This reaction, heating of the acetic acid in the presence of the red phosphorus, when this acetic acid is treated with the chlorine in presence of the red phosphorus, alpha halogenation takes place. As a result of that, trichlorocarboxylic acid, that is the trichloroacetic acid is formed. This is the reaction is called as Hell-Vollard-Zelensky reaction. HVZ reaction है. Once again, write about the acidic nature of the carboxylic acids बोल के बोल रहा बेटा. Carboxylic acid की acidic nature रहती CH3COOH. तो ये acidic substances है, नाम खुद है एसिटिक एसिड वगैरह बोल के, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर. व्हाई दीज आर एसिडिक इन नेचर, सेम यहाँ पे भी जो है क्या हो रहा, OH बॉन्ड क्लीवेज होता और यहाँ पे एसीटेट आयन आता, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो जाता, तो देयरफॉर इट इजीली रिलीजेस दिस हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन रिलीज जो कर रहा वो कौन से नेचर में रहता, एसिडिक नेचर में रहता. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन्स को देखिए, पहले ये लिख ले रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन COOH. If we are replacing this hydrogen with the halogens or more electronegative elements, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करें तो एसिडिक नेचर फर्दर इंक्रीज होती. तो यहाँ हाइड्रोजन लिया, यहाँ हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे Cl डाल दिया, एसिडिक नेचर ऑफ दिस इज मोर देन दिस. तो ऐसा याद रखना भाई. और क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दो हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, तो एसिडिक नेचर फर्दर इंक्रीज होती, ओके. और हैलोजन और एक एक हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, एसिडिक नेचर फर्दर इंक्रीज होती. इट इज मोर एसिडिक देन दिस एंड इट इज मोर एसिडिक देन दिस, इट इज मोर एसिडिक देन दिस. इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द हैलोजन्स ऑन दिस अल्फा पोजीशन, तो फर्दर एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. If the acidic nature is increases, its Ka value is increases and pKa value is decreases. Okay, इसकी Ka value ज्यादा रहती भाई, इसकी pKa value कम होती. ऐसा है, इसका नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू को pKa बोलते हैं. Okay, which is having more acidic nature, that is having more Ka value, dissociation constant of that acid is more, and that is having less pKa value. This is about the acidic strength of the carboxylic acids. Carboxylic acid के acidic nature के बारे में समझा दिए. फिर उसके बाद में amines किसको बोलते हैं, what are amines? aldehyde and ketones के थोड़े क्वेश्चंस पढ़ा दिए थे हम. तो उसके अंदर जो है aldol कंडेंसेशन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है, तो पूरे रिएक्शन से LAQ में आ सकते हो. तो उसके बाद में जो है amines के बारे में बोल रहे हैं. what are amines? These are the derivatives of ammonia. NH3 है ना, NH3 के अंदर जो है अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, RH से रिएक्ट कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है यहाँ, NH3 से एक हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो रहा. इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमरी अमाइन. प्राइमरी अमाइन बोल के बुला रहे.
फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ और एक एक अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर रहा हूँ मैं। तो क्या हो रहा है यहाँ और एक एक अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा। इट इज कॉल्ड एज विच अमाइन? सेकेंडरी। इफ ऑन द नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन. If on the nitrogen 1 alkyl group is there, that is called as the primary amine. If on the nitrogen 3 alkyl groups are there, that is called as the tertiary amines. बोल के बुला रहे हैं यहाँ पे। चलो प्राइमरी अमाइन को एक एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर द प्राइमरी अमाइन? सो दिस इज द प्राइमरी अमाइन नोन एज मिथाइल अमाइन और मिथानामाइन बोल के बुलाते हैं। ओके, मिथानामाइन। और सेकेंडरी अमाइंस को एग्जाम्पल क्या है? तो हाइड्रोजन की जगह CH3 ले लिया भाई, CH3 ले लिया, या हाइड्रोजन को ले लिया। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ ऐसा बुलाना N मिथाइल, N पे मिथाइल ग्रुप है और ये क्या हो गया भाई? मिथानामाइन हो गया है। N मिथाइल मिथानामाइन। परसों ये नेम्स लिखो बोल के बोला था लास्ट क्वेश्चन में, VSAQs में 10th क्वेश्चन दिया IUPAC नेम्स लिखो बोला, तो कैसा लिखना? ऐसा लिख ले के N पे कौन सा ग्रुप है लिख लेना। N पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। ओके, मिथाइल, फिर ये एक कार्बन वाला मिथानामाइन बन जाता। सो N मिथाइल मिथानामाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई एम राइटिंग दिस अनदर वन। देखिए यहाँ पे मिथाइल ले लिया भाई, यहाँ पे और एक एक मिथाइल ले लिया, यहाँ पे और एक एक मिथाइल ले लिया, ये हो गया 3 डिग्री हो गया। तो ये 3 डिग्री अमाइंस को कैसा बुलाना? ये नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, उसीलिए N कामा N 2 बार लिख लेना। कितने बार आया मिथाइल ग्रुप? 2 बार आ गया, तो डाई। कौन सा ग्रुप बोला मैं? अब मिथाइल ग्रुप, N कामा N डाई मिथाइल। फिर कौन सा अमाइन है ये? अगर इथाइल ग्रुप है तो इथानामाइन लिखना, यहाँ मिथाइल ग्रुप ही लिया, उसीलिए इसको क्या बोल के बुलाते? मिथानामाइन बोल के बुलाते हैं। N डाइमिथाइल मिथानामाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस तरीके से आपको IUPAC नेम्स देना है। तो लास्ट परसों एग्जाम में, एनुअल एग्जाम के अंदर 10th क्वेश्चन दिया था ये IUPAC नेम्स के बारे में। नाउ देन इन दिस अमाइंस के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछता बेटा। एंड दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ, इससे आपका ये टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाता। मैं क्या क्या कंप्लीट करा? मैं स्टार्टिंग से सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस बोला। मैं सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है सॉलिड स्टेट में? सॉलिड स्टेट 11th क्वेश्चन से आता। सॉलिड स्टेट इज फॉर द 11th में कौन सा क्वेश्चन है वे? ब्रैग्स इक्वेशन एक है, ब्रैग्स इक्वेशन एक सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स। ओके, 4 मार्क्स का चैप्टर है भाई। इससे एक क्वेश्चन आता ब्रैग्स इक्वेशन और सेमीकंडक्टर, या नहीं तो शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट ये पूछता, नहीं तो एफ सेंटर, ये ज्यादा पूछ रहा है। दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। नाउ सेकंड चैप्टर कौन सा है भाई? वो सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस में कौन सा इंपॉर्टेंट है? दिस इज द 12th क्वेश्चन है भाई। 11th वाला ये हो गया, 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन इज फ्रॉम द सॉल्यूशंस, सेकंड चैप्टर से। In this, which are the questions are which questions are important? Almost all ये जो questions आ रहे हैं ना भाई, मोलारिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या नहीं तो मोलालिटी, या नहीं तो मोल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स, या नहीं तो यहाँ पे रॉल्ड्स लॉ का प्रॉब्लम है, रॉल्ड्स लॉ प्रॉब्लम विथ पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। आई वाज एक्सप्लेन ऑल दिस। मेरी क्लासेस देखिए आप लोग, मेरे क्लासेस ये पूरे समझाए हम 12 क्वेश्चन से। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, रॉल्ड्स लॉ प्रॉब्लम, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ से VSAQs कौन से है? द वेटेज फॉर द सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन इज ऑफ 6 मार्क्स। इसमें एक SAQ आता और एक VSAQ आता, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। VSAQ में कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई? ज्यादा पूछ रहा, सो व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोल के पूछ रहा, और एक क्वेश्चन है भाई व्हाट इज द हेनरीज लॉ बोल के पूछ रहा, व्हाट इज द रॉल्ड्स लॉ, या नहीं तो मोलारिटी मोलालिटी के डेफिनेशन, या नहीं तो सिंपल प्रॉब्लम, या नहीं तो फिर एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, या नहीं तो फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर। ये चैप्टर से
ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस ये है, दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्वेश्चंस है और ये एसएक्यूज है, वो भी एसएक्यूज है। नाउ देन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 के देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स से आता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस? राइट अबाउट द फैराडेज लॉस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक पूछ सकता, नॉन्स्ट इक्वेशन बोल के है, वो ज्यादा नहीं पूछता। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं तो यहाँ पे फ्यूल सेल के बारे में पूछता। सो ये एक है, और एक नहीं तो फिर ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस के बारे में पूछता। सो दिस इज अबाउट द 13th क्वेश्चन। और ये चैप्टर से एक वीएसए क्यों आता, वो आप मटेरियल में रिपीटेड क्वेश्चंस देखिए, कभी नहीं तब तो भी पूछना है, यानी तो ज्यादा नहीं पूछ रहा। और नेक्स्ट 14th क्वेश्चन फ्रॉम दी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से आ रहा 14th क्वेश्चन। इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई? एक्सपेक्टेड वन, फिजिकल केमिकल एड्सॉर्प्शन के डिफरेंसेस। फिर ना तो कैटालाइसिस, व्हाट इज द कैटालाइसिस, वैरायटी टाइप्स। नहीं तो फिर व्हाट आर द एमल्शंस, वैरायटी टाइप्स। एग्जांपल फॉर द कोलॉइडल सॉल्यूशंस, नहीं तो फिर माइसिल क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14 के क्वेश्चन है जो मैं पढ़ाया, वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, ये कहाँ से आता? क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द मेटलर्जी। मेटलर्जी में कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऑलरेडी आई वाज एक्सप्लेन दैट फ्लोटेशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन कैलिसिनेशन एंड रोस्टिंग। कैलिसिनेशन एंड रोस्टिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या नहीं तो फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के बारे में पूछता, या नहीं तो व्हाट इज पोलिंग, व्हाट इज गैंग, व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज द जोन रिफाइनिंग, ऐसे छोटे छोटे टर्म्स मिला के पूछ सकता। व्हाट इज द रोल ऑफ द क्रायोलाइट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी है बीएसए में आता। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ से आएंगे भाई? ये ग्रुप से आ सकता। ग्रुप से फर्स्ट जो प्रियोरिटी है XeF2, XeF4 और XeF6, या नहीं तो XeOF4। इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2। एनी टू आर आस्क्ड अमंग दिस। इसके अंदर से कौन से भी दो पूछता बेटा, इतने पूरे नहीं पूछता। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। अगर ये नहीं आया तो व्हाट आर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कौन से होते? या नहीं तो आपको शॉर्ट में आपको प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पूछ सकता है, या नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन पूछ सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन खाली आपको ऐसे क्यों में लिखना है। 3 स्टेप्स इसमें रहते हैं और 3 स्टेप्स इसमें रहते हैं, ये लिखना है आपको। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। एंड क्वेश्चन नंबर 17 आपको बायोमॉलिक्यूल से आ सकता, नहीं तो पॉलीमर से आ सकता। क्वेश्चन नंबर 17 तो बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के अंदर जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट कर रहा, व्हाट आर विटामिन्स बोल के पूछ रहा। व्हाट आर विटामिन्स, राइट द डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। Now next about the another question, what are the hormones? Write about the example. Write the examples for the steroid hormones and amino acid peptide hormone को example लिखो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर। नहीं तो फिर what is the denaturation of protein के बारे में। नहीं तो write about mono dipolysaccharides पूछता, या नहीं तो व्हाट इज द पेप्टाइड लिंकेज एंड एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड लिंकेज। सो ये इसी से आते बेटा क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन से आ रहे हैं ज्यादा। नाउ 18th क्वेश्चन इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जब से समझा रहा हूँ मैं SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में, नहीं तो सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन के बारे में, नहीं तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस के बारे में समझाओ बोलता। तो एसिडिक नेचर पढ़ा दिया,
सैंडमेयर गैडरमैन पढ़ाया, SN1 SN2 पढ़ा दिया, थोड़े नेम रिएक्शंस भी हो गए, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इसके बारे में समझा दिए, तो ये पूरे SAQs कंप्लीट हो जाते। और LAQs कौन से है, विच आर द LAQs आर देयर, LAQs में कौन से है बोलिए, 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन में ज्यादा कौन सा रहा भाई, कॉलरॉश लॉ एंड एप्लीकेशन, कॉलरॉश लॉ एप्लीकेशंस पूछता, 2 बिट्स बना रहा 19 क्वेश्चन में, ए बिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बी बिट जो है इसका है भाई यहाँ पे कोल्यूशन थ्योरी के पोस्टुलेट्स, कोल्यूशन थ्योरी नहीं तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी। ओके, इससे पहले लिखा था मैं क्वेश्चन नंबर 13 में, वो यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ पे आ जाता। यहाँ पे और एक है बेटा, गाल्वानिक सेल है, गाल्वानिक सेल है। ओके, तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो इसमें से 2 क्वेश्चंस है और ये काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चंस है, इन दोनों को क्लब करके मिला लेके आपको 19 क्वेश्चन में पूछ सकता। तो नो देन क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द ग्रुप्स में से पूछ रहा है, तो either that may be preparation of ozone and properties, that may be Cl2 preparation and properties, ये ज्यादा पूछ रहा हूँ, और प्रिपरेशन ऑफ HNO3 भी हो सकता या नहीं तो NH3 हो सकता, एंड देयर प्रॉपर्टीज, इनके प्रॉपर्टीज से already all these things we are explained you, all these question answers I was explained in previous classes, पिछले क्लासेस में ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर समझा दिया था मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द नेम रिएक्शंस, कौन से है आज भी मैं बोला, तो विलियमसन सिंथेसिस है, कोल्ब्स रिएक्शन है, रेमर-टीमन रिएक्शन है, ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है, एसिटाइलेशन है, और नहीं तो HVZ, यहाँ ज्यादा नहीं पूछता HVZ, कार्बालामाइन रिएक्शन है, और डीकार्बोक्सिलेशन, LAQ के आस्ते इतने पढ़ लिए तो आप बस इसमें से ये रिएक्शन से एक LAQ मिल जाता। कौन से है, विलियमसन सिंथेसिस, कोल्ब्स रिएक्शन, रेमर-टीमन रिएक्शन, ऑल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन, HVZ reaction, कार्बालामाइन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। So these are important LAQs. Now basic nature of amines में थोड़ा है बेटा explanation. Basic nature of amine, generally see that amine contains the one lone pair, therefore it is basic in nature. Basic nature में रहता, amine is amines and ammonia products are basic in nature. What are amines? देखिए RNH2, इस पे भी लोन पेयर है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। और सेकेंडरी अमाइन किसको बोलते हैं, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन एंड दिस इज द टर्शरी अमाइन। तो यहाँ बेसिक नेचर एक्सप्लेन करने के वास्ते 3 फैक्टर्स है, स्टीरिक फैक्टर एक रहता, इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर एक है, और एक सॉल्यूशन के बारे में मतलब सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो ये 3 फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए फाइनल जो ऑर्डर है ना भाई, वो ऑर्डर ये है, सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक इन नेचर। सेकेंडरी में क्या रहना, वो एलिफेटिक रहना, सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन व्हाट, देन उसके बाद में यहाँ लेना प्राइमरी अमाइंस, फिर उसके बाद में 3 डिग्री अमाइंस। ओके, ये होने के बाद में क्या होता भाई, वो अमोनिया होता है NH3। ओके, अमोनिया से भी लेस बेसिक कौन से है भाई, वो एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक में कौन सा अमाइन ज्यादा रहता, 2 डिग्री अमाइन, एरोमेटिक 2 डिग्री अमाइन। फिर उसके बाद में एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ये सीक्वेंस है भाई, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर है यानी कि। सो सबसे ज्यादा एलिफेटिक प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक। जब से मैं समझाया सेकेंडरी अमाइन किसको बोलते हैं, एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन, नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल ग्रुप रहना, 1 हाइड्रोजन रहना और एलिफेटिक ग्रुप्स रहना, बेंजीन रिंग्स वगैरह नहीं रहना। सो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी अमाइन। एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक। जो मोर बेसिक है उसकी Kb वैल्यू ज्यादा रहती और Pkb वैल्यू कम रहती। बेस्ड ऑन दिस सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। ओके, तो इसकी Kb वैल्यू सबसे ज्यादा रहती और Pkb वैल्यू ये सब में कम रहती, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, लाइक दैट।
तो ये सीक्वेंस याद रखिए तो आप जो है एक VSAQ अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। तो सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक, दीज आर हैविंग मोर Kb वैल्यू एंड हैविंग लेस pKb वैल्यू देन दिस प्राइमरी अमाइंस। उसके बाद में टर्शियरी अमाइंस, फिर उसके बाद अमोनिया, फिर उसके बाद एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक में सेकेंडरी पहले आता, उसके बाद प्राइमरी आता। एरोमेटिक अमाइंस आर less basic than the ammonia because lone pair of electron present on this nitrogen undergoes a resonating structure, जिसकी वजह से lone pair of electron deactivate हो जा रहे हैं, तो जल्दी डोनेट नहीं होते। Therefore aromatic amines are less basic than that of the ammonia. This is about the basic nature of the amines beta. So this is about your revision beta। यहाँ से पूरा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह we'll see in next class।